سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کے بعد سنائی گئیں۔ ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم دیا تھا۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے شدید صدمہ ہے۔ سانحہ 9 مئی تاریخ میں سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان ولد طور خان کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمران محبوب ولد محبوب احمد کو 10 سال قید بامشقت، GHQ حملے میں ملوث راجہ محمد احسان ولد راجہ محمد مقصود کو 10 سال قید بامشقت اور پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ ولد منجور خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سیکرٹری جنرل پیٹائی سلمان اکرم راجہ کا اعلان، کہا بانی پیٹا نے مذاکرات کی ڈیڈ لائن دی، وہ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہفتے کے روز تک مذاکرات نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کی کال نافذ ہو جائے گی۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ PF بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان ولد محمد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا، بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان ولد احمد اشفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا کاٹنا ہوگی۔ چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان ولد امیر زیب کو 7 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث فہیم حیدر ولد فاروق حیدر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد خان کو 4 سال قید بامشقت، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث یاسر نواز ولد امیر نواز خان کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث عبدالہادی ولد عبدالقیوم کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی شان ولد نور محمد کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث داؤد خان ولد شاد خان کو 10 سال قید بامشقت، GHQ حملے میں ملوث عمر فاروق ولد محمد صابر کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ نو مئی کے دیگر مجرمان میں PF بیس میاں والی حملے میں ملوث بابر جمال ولد محمد اجمل خان کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان کو 4 سال قید بامشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم شہزاد ولد لیاقت علی کو 3 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد بلال ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت کاٹنا ہوگی۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث سعید عالم ولد معاذ اللہ خان کو 2 سال قید بامشقت، ISI آفس فیصل آباد حملے میں ملوث لئیق احمد ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی افتخار ولد افتخار احمد کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث ضیاء الرحمان ولد اعظم خورشید کو 10 سال قید بامشقت، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث عدنان احمد ولد شیر محمد کو 10 سال قید بامشقت کاٹنا ہوگا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث شاکر اللہ ولد انور شاہ کو 10 سال قید بامشقت۔ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی قانونی عمل مکمل ہوتے ہی کر دیا جائے گا۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ ISPR نے واضح کر دیا، ISPR کے مطابق کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاستی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سزائے تنبیہ ہیں، مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ جناح ہاؤس میں ملٹری یونیفارم پہن کر ویڈیو بنائی اور پھر شرٹ کو جلا دیا، مجرم جان محمد خان کا اعتراف۔ مجرم علی شان نے کہا سیاسی رہنماؤں کے ورغلانے پر جناح ہاؤس میں جا کر توڑ پھوڑ کی،
मुजरिम बाबर जमाल खान ने कहा, मियां वाली बेस पर हमले में मुलव्वस था और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुजरिम दाऊद खान ने इकरार किया कि इसने यास्मीन राशिद और हसन नियाजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर ने एतराफ़ किया, जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी जमान पार्क में यास्मीन राशिद की क़यादत में की गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर खान ने इंकशाफ किया कि जमान पार्क में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई के ज़ेरे हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर रद्द अमल। कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खुसूसी ताकत की तकसीम की नफी हुई है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो तो मुल्क में मायूसी बढ़ेगी। हम इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ न डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताखीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सानिहा 9 मई केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिनकी वजह से 9 मई हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आए। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात अडियाला में की। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को नोटिस। आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। उधर बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर समात। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। जराबी मुकम्मल। इस्तगासा अगली समात पर मजीद 2 गवाहों अहद और बिनयामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। समात 26 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई को पूरे यकीन है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा दी जाएगी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक अहमकाना केस है। वाज़ेह हो गया है कि उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। उनकी नीयत यही है कि ये सबको कैद में रखें। हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि ये मुतालबात पर कोई बात भी करना चाहते हैं। हमारे 2 मुतालबात पर बातचीत की गई तो बानी पीटीआई ने कहा कि वो तरसीलाते ज़रना भेजने की कॉल रोक देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदार जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का भी जायजा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी भी आईनी बेंच में शामिल हैं। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा कि आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। केस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी।
जजिस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। खत में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मुबनी है। बगैर सबूत हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमेरिका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमेरिका के लिए बुरे इरादे का मुजाहिरा नहीं किया। पारा चनार में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। चल पारा चनार मेन रोड 74वें रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। होटल्स, तंदूर समेत सैकड़ों दुकानों को ताले लग गए। रोड की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में मकामी शहरियों का प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। पारा चनार में अशिया खुरोनो, शदिया अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। पिछले 40 दिन से ताज़ा सब्जी और फल नहीं मिल रहा। बैंक्स में कैश खत्म, ATMs मशीन्स बंद पड़ी है। कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया बंदिश, शहर शहर लोग महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आए रोज गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन गया। उधर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का कराची में गैस की मसनूई किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। गैस फराहम करने वाला इदारा गैस की मुनसिफाना फराहमी और भारी बिलों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा। कहा, कंपनी बुनियादी ज़रूरत की मुनसिफाना तकसीम में बुरी तरह नाकाम। गरीब परवर शहर में गरीब तबका ही सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता तबका परेशान। VPN पर पाबंदी IT सेक्टर, कारोबार और तालीमी शोबों पर भारी पड़ गई। लाइव स्ट्रीम लोड न होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का कारोबार भी मुतासिर। वीलॉग बनाने वाले नौजवान भी इंटरनेट की कम स्पीड से सर पकड़ कर बैठ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है वीडियोज़ अपलोड करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTN ने दावा किया है कि रवां साल मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में 6 सफारत खानों पर मिसाइल दाग दिए। 1 शख्स हलाक, 12 अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में सफारती अमला महफूज रहा। अल्बानिया, अर्जेंटाइन, फ़लस्तीन, शिमाली मकदूनिया, मोंटेनेग्रो और पुर्तगाल के सफारत खाने मुतासिर हुए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन में अमरीकी साख्ता पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमरीका यूक्रेन को असलहे की फराहमी के लिए $1.2 अरब का पैकेज देगा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि उनकी फौज रूस से अपने इलाके वापस लेने की ताकत नहीं रखती।